स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल, आपका अपना चैनल लेट्स स्कोर फुल में। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके करिए। जो भी मैं सम बोलती हूँ पहले उसको ट्राई कीजिए। इन केस आपको नहीं आ रहा है देन ओनली यू सी द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इज अ पॉइंट, अगर ए डी को मैं एक्सटेंड करती हूं तो वहां पे एक पॉइंट ई है। बी ई बाइसेक्ट सी डी। ओके, सो हियर इट इज ई। बीई मतलब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये सीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। इन एट एफ, दिस पॉइंट इज एफ। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी, ठीक है, दिस इज टू प्रूफ। व्हाट इज गिवन? गिवन लिख लेंगे। चलिए मैं ही लिख देती हूं। गिवन इज डी एफ, या फिर आप बोलिए एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, ओके। प्रूफ कैसे करेंगे? ए बी ई, वेयर इज ए बी ई? ABE, this bigger triangle, and CFB, CFB, this is smaller triangle. ठीक है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं। ABE similar to CFB. ओके, नाउ कहां से शुरू करें? देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, वन ट्रांसवर्सल इज कटिंग, करेक्ट। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। लाइन कौन कौन सी है? ए बी एंड सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो पैरेलल होंगी। और एक ट्रांसवर्सल डीई कट कर रहा है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। सो एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन विच ऑल एंगल इज इक्वल? यहां देखिए, AD and BC parallel, one transversal BE cutting, so alternate interior angle again, correct। दो पैरेलल लाइन AB and AD, उसी को एक्सटेंड किया है, तो AB, I mean to say BC is parallel to AD. So angle this one, AEB is equal to FBC, alternate interior angle. So from angle similarity, they both will be similar by angle test, correct। यही हमें प्रूफ करना था। डन, ओके। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रब कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है देयर इज अ फिगर गिवन ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले ABC बना लेते हैं। Figure is something like this. Naming is A, B, C, and AMP are two right angle triangle. Right angle at B and M. Okay. So I think I did something wrong. Yeah, this is not the figure.
क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राइंगल दिया है A B C and A here P and this is M. This is figure. Angle B is 90, angle M is 90. Right angle at B and M respectively. हमें proof करना है. There is a two part. So I'll write here. First part we have to prove triangle ABC is similar to triangle AMP. And the second part of it is we have to prove CA upon AP is equals to BC upon MP. These two things we have to prove. What is given? Given triangle ABC, right angle at angle B and APM, right angle at M. ठीक है? प्रूफ देखते हैं. सो जो सिमिलर प्रूफ करना है वही ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC एंड ट्राइंगल AMP. देखिए इसका एंगल B इज इक्वल्स टू इसका एंगल M, बोथ इज 90 डिग्री गिवन. And what is next? Here if you see, so angle CAB, this angle is equals to angle MAP, common angle. So from angle both are similar. Correct? By which test? AA test. Okay. Now if these two are similar, so in similar triangle the ratio of corresponding side is equal. So यहाँ से देख लेते हैं. If I'll take AB, this will be AM. If I'll take BC, this will be MP. If I'll take AC, first and last, it will be AP. So this part they have asked us to prove in the second part. Correct? So first part we have proved here and the second part here by corresponding side, the ratio of corresponding sides of the similar triangle. Clear? Done? Okay. Let's do the 10th one. Question 10 says, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that, okay, so there are two triangle ABC, and another triangle is EFG. Suppose this is EFG. Okay. Now CD and GH. CD, this one, and GH, this one. They are angle bisector. Let me correct the figure. They are angle bisector. I don't know whether C and G are equal, so I have marked that single line and here it is double line. Now, okay, they are bisector. We have to prove, okay, they have given ABC is similar to triangle FEG. This is given. Bisector given and this is given. We have to prove the first part. यही लिख देते हैं. The first part is CD upon GH is equals to AC upon FG. Correct? Okay. So CD and GH AC upon FG. ये साइड यहाँ हमें नहीं मिल रही है,
सो विल गो टू ट्रायंगल जिसमें ये साइड हमें मिल जाए. वी वॉन्ट CD हियर, वी वॉन्ट GH हियर, AC हियर and FG here. So I'll take this triangle and here it is this triangle. Correct? So prove triangle ACD and triangle GFH because this side I need. जो साइड आपको चाहिए वही ट्रायंगल लेते हैं एंड ट्राई टू प्रूव सिमिलर. कैसे किया मैंने? CD और GH चाहिए तो CD ये मिल रहा है, GH यहाँ, नो प्रॉब्लम. AC I am getting above and FG I am getting below. So I need to take this triangle and this triangle where I'll get these sides. Okay, अब देखते हैं. उन्होंने बोला कि ABC is similar to EFEG. इसका मतलब क्या है? एंगल C एंड एंगल G आर इक्वल. करेक्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है. सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. करेक्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. एंगल ऑफ सिमिलर triangle. If these triangle are equal, their half will also be equal, dividing both side by half. So angle C का half is nothing but I can write angle ACD. Angle C का half ACD. हम लिख सकते हैं BCD, लेकिन हमें ट्राइंगल कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है? ACD में, इसलिए मैंने ये एंगल लिया. एंगल G का हाफ कौन सा है? ये दोनों. हमें लेना कौन सा चाहिए? जो हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल में है, मतलब FGH. सो एंगल FGH. ओके. एंड यहां से अगर आप देखें, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? B एंड F. B. ओके. यहां एंगल A एंगल F के इक्वल है. करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, एंगल F इज इक्वल, लेफ्ट में हमें लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एंगल लिखना चाहिए, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सो फ्रॉम हियर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD. A किसके इक्वल है? A इज इक्वल्स टू F, C इज इक्वल्स टू G. तो हमें लिखना पड़ेगा F, G एंड H. एक बार चेक कर लेते हैं. A के इक्वल है, A इज इक्वल टू F, C हाफ ऑफ C इज इक्वल्स टू G एंड रिमेनिंग वन इज D. करेक्ट? ओके. अगर ये सिमिलर हैं बाय AA टेस्ट, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए. ठीक है. सो दे आर आस्किंग फॉर रेशियो, तो रेशियो में चलते हैं. तो इफ आई एम टेकिंग CD द लास्ट टू, इसका लास्ट टू GH, अभी क्या चाहिए? AC द फर्स्ट टू. तो अगर आप AC लेके तो इसका फर्स्ट टू FG. यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड. करेक्ट? डन. इसका सेकेंड पार्ट देख लें. ओके. रब कर दें. ओके. अच्छा, ये जो हमने प्रूव किया है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन. थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा? दे हैव आस्क्ड triangle DCA is similar to triangle HGF. DCA देखिए, DCA is equals to HGF. The same thing they have asked in the third part. तो 10th का थर्ड पार्ट यहीं कवर हो गया. करेक्ट? अभी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. ये रब कर दें. डन.
सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन का, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। ठीक है, ले लेते हैं वही दो ट्राइंगल, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। ओके, सो फिगर में देखिए कहाँ है DCB, दिस पार्ट HGE, करेक्ट। सो अभी हमने प्रूव किया कि एंगल C और G इक्वल थे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, डिवाइडिंग इट बाय 2। सो दिस टाइम आई टेक बिलो ट्राइंगल, वी आर टेकिंग द बिलो ट्राइंगल, मतलब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। सो एंगल BCD इज सिमिलर, इज इक्वल टू ट्राइंगल विच वन, HGE, and angle B is equals to angle E। यहां से angle B is equals to angle E, corresponding parts of similar triangle। corresponding angle of similar triangle, and this is angle bisector, the above one, angle bisector। okay, it means triangle DCB is similar to triangle HGE by AA test। clear, done। okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सारे इसके सम वैसे इजी हैं, बस लिखने का तरीका आप यहां से रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इज इजी। ओके, क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 says there is one triangle ABC, ABC, इसको उन्होंने आगे एक्सटेंड किया है एंड दैट इज E। From here there is a perpendicular F, and from A to here perpendicular D. This is the figure. What is information is given? Is a point on side BC, CB extended, CB को extend किया, C से जब आप B की तरफ जाओगे तो उसको extend किया है up to point E, correct? Of an isosceles triangle ABC, ABC isosceles है, मतलब AB is equals to AC, correct? Isosceles triangle मतलब two sides are equal, AB is equals to AC उन्होंने दिया है। AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। What we have to prove? उन्होंने बोला to prove is ABD, triangle ABD is similar to triangle ECF। ओके, ठीक है, ABD कहाँ है? ABD and ECF। So let's prove it। triangle ABD and triangle ECF। What is given? ABD में आप देख रहे हैं AD is perpendicular, मतलब एंगल D is 90 degree। So ADB in triangle ECF, EF is perpendicular means angle EFC, each is 90 degree। लॉजिक लिखेंगे AD is perpendicular BC and EF perpendicular to AC। ओके, अब देखिए they told AB is equals to AC, correct? If this is given, so angle opposite to equal side are also equal। So if AB and AC are equal, उनके अपोजिट के एंगल, AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट एंगल C, so they are going to equal। So angle B is equals to angle C, angle opposite to equal side,
opposite to equal sides, and this is given. So see, the two angles is equal. Angle B in triangle ABD and angle C in triangle EFC. So by angle, they both are similar. Correct? By angle test. ये डन हो गया? ओके. नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12. Question 12 says, side AB, BC and median AD of a triangle ABC. एक ट्राइंगल है ABC. तो AB, BC and median AD. They are proportional to the side PQ, QR and median. Okay, so there is another triangle PQR and median, which is that QPM. Okay. So in two triangle AB, BC and median AD is proportional to PQ, QR and PM. Okay. So what is given, we can write like this. AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AD upon PM. उन्होंने बोला रिस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस से AB, BC and AD is proportional to PQ, QR and PM. means AB upon PQ, BC जो यहाँ लिखा हुआ है. मीडियन means what? मीडियन means वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना इज मीडियन. सो सेम वे हियर दीज टू पार्ट्स आर इक्वल. ठीक है, ग्रेट. सो हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट ट्राइंगल, दिस इज टू प्रूव ट्राइंगल ओके ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ओके, है तो इजी, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ किसी स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं आ रहा है. सो सबसे पहले मुझे दो साइड तो अच्छे से मिल गई हैं. AB करेक्ट, AB BC क्या क्या साइड है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन. ओके, हाँ. सो यहां से देखते हैं, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखिए प्रूफ, देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM. देखिए प्रूफ ये करना है, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्यों? क्योंकि BC और AD तो पूरे बड़े ट्रायंगल में आ नहीं रहे हैं, तो हाउ टू यूज दैट? सो लेट्स टेक दीज टू ट्रायंगल ABD एंड PQM. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये गिवन है AB, PQ, BC, QR एंड AD एंड PM. ओके, सो देखिए अगर BC अपॉन QR सेम है तो कैन आई मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ साइड, और मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैन आई डिवाइड इट बाय 2. करेक्ट, वी कैन डू दैट. किसी भी नंबर को न्यूमरेटर, अगर वो फ्रैक्शन है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दैट रेशियो डज नॉट चेंज. करेक्ट, ये कर सकते हैं. ओके, सो AB अपॉन PQ, BC का हाफ आई कैन राइट BD, आई कैन राइट DC ऑल्सो, बट वी विल टेक BD हियर क्योंकि हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल में BD है. सो BD एंड QM is equals to AD upon PM. See, in these two triangle, the ratio of corresponding sides are equal, means these two triangle are similar. So triangle
ABD is similar to triangle PQM by side, side, side test. If they are similar, means what? Their corresponding angles are equal. So this angle is going to equal to this. This angle, corresponding angle is this. Angle B is equals to angle Q. So can I write angle B is equals to angle Q by corresponding angle of similar triangle. Corresponding angle of similar triangle. Correct? Okay. Now go to triangle. What we have to prove? Triangle ABD and triangle ABC we have to take now, and triangle PQR. Okay, so here we have seen दो साइड का रेशियो AB upon PQ is equals to BC upon QR. This is given, and we have proved just now कि angle B is equals to angle Q. Proved above, ऐसा लिख सकते हैं, proved above, या फिर आप यहाँ पे इक्वेशन का नाम दे दीजिए 1 and write from 1. ठीक है? So देखिए, two side AB and BC, PQ and QR, उनका रेशियो सेम है and included angle are same. So it means what? Triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test. Clear? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 रब कर देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? D is a point on the side BC of a triangle ABC such that, okay, let me draw the triangle first. एक ट्रायंगल दिया है ABC. Okay, एक सेकेंड, सॉरी. Okay, ABC is a triangle. D is a point on side BC. यहाँ पे एक एंगल D है. Such that ADC, this angle is equals to कहाँ गया? Sorry, BAC. Okay, angle D is equals to this full angle. Given angle ADC is equals to angle BAC. This is given. Okay. और क्या चाहिए भाई इनको? They want to show that, to prove CA square is equals to CB into CD. ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका. क्या करना पड़ेगा आपको? क्या चाहिए? CA, this. क्या चाहिए? BC. BC कहाँ है? This full. ठीक है. CD कहाँ है? CD is here. Okay. So देखिए, आपको CD चाहिए मतलब फॉर श्योर ADC ट्रायंगल चाहिए. आपको BC चाहिए मतलब श्योर ABC तो चाहिए, क्योंकि AC तो दोनों में था, ADC में भी था और ABC. In both the triangle you are getting AC. So deciding factor are these. जनरली जो प्रूव करना है उसको देख के आप बता सकते हैं कि आपको कौन से ट्रायंगल लेने हैं. तो यहां से जो BC और CD है वो एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लेने से मिल रहा है. तो देख लेते हैं. और ये ऐसे स्क्वायर में तो दिख रहा है, बट आई थिंक समथिंग AC अपॉन CB कुछ रेशियो जैसा बनेगा. तो वो दो ट्रायंगल ट्राई करते हैं. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में देखिए, एंगल C दोनों में है, सो दैट इज कॉमन एंगल. एंड इसका एंगल BAC, द बिगर ट्रायंगल का, कंप्लीट ट्रायंगल का BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC गिवन है.
सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? ए किसके इक्वल है? डी के। बी किसके इक्वल है? डोंट नो। सी पता है? सी के। तो व्हाट इज लेफ्ट विथ? ए। क्लियर? सो ट्रायंगल, let me write it clearly, by AA test. So if they are similar, their corresponding side proportional होंगी similar triangle में। देखते हैं क्या चाहिए आपको। AC चाहिए तो AC इसका लेते हैं। If you take AC, इसका क्या लेना पड़ेगा? BC। करेक्ट। अभी क्या चाहिए उसको? BC चाहिए तो BC यहां से अगर आप लेते हो तो लास्ट का 2 एंड लास्ट का 2 AC क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू BC। DC मतलब CD एंड BC, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट? डन। नेक्स्ट देखें। ओके, रब कर दें। चल क्वेश्चन 14। ओके, लगभग इसी के जैसा सम है। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ओके, एक ट्रायंगल ABC है, A B C and median again AD are respectively proportional to side PQR. Again there is one more triangle P, this is QR and this is PM. ठीक है? So it says AB AC. Previous question में AB and AC was given, but here AB, AC and median AD, median means this is midpoint, respectively proportions to QP, PR and PM. ठीक है? This is given and show that triangle ABC, फिर से वही करना है to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. Now यहाँ पे हमने पिछली इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या किया? हमने छोटे ट्रायंगल ले लिए। लोगे तो एक यहां से मिल रही है, एक साइड यहां से मिल रही है। सो टू साइड आई एम नॉट गेटिंग इन अ सेम ट्रायंगल। करेक्ट? सो बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड कि BC अपॉन QR इज सेम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी छोटा ट्रायंगल वी कैन नॉट टेक। वाई? बिकॉज AB अपॉन PQ AC अपॉन PR दिखा है, तो हमें तीन साइड नहीं मिल रही है और एंगल भी कुछ भी नहीं दिया है। सो इसको कैसे करेंगे? आई थिंक वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन मैं ब्लू से कर देती हूं। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD को आगे एक्सटेंड कीजिए अप टू द सेम लेंथ। उसको नाम दीजिए ABCDE नाम दे दीजिए एंड ज्वाइन दीज टू। सिमिलरली PM जो भी लेंथ है उसको आगे एक्सटेंड करके S नाम दे दीजिए एंड ज्वाइन दीज टू। ओके, होप सो दिख रहा है। आई डोंट वांट टू इरेज दिस क्योंकि लिख दिया है तो इसलिए। ओके, नाउ देखते हैं। ओके, देखिए ABCD, ABEC is a quadrilateral. Okay, so quadrilateral ABEC. डायगोनल कौन सा है? AE एंड BC। ये दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। देखिए दिस इक्वल्स टू दिस क्योंकि AD मीडियन था एंड बाय कंस्ट्रक्शन दिस इज इक्वल्स टू दिस। करेक्ट? हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया AD इज इक्वल्स टू DE एंड यहां पे क्या किया?
PM इज इक्वल्स टू MS. दिस इज कंस्ट्रक्शन. और फिर उनको ज्वाइन कर दिया है ना, जो भी हमने किया यू कैन राइट इट ओवर देयर इन द नोटबुक. ठीक है. सो व्हाट वी डिड, अगर इस पैरेलल इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें ABEC, सो AE एंड BC आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, बाइसेक्टिंग ईच अदर मीन्स व्हाट, ये कब होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कब करते हैं, व्हेन इट इज अ पैरेललोग्राम. मीन्स ABEC is a parallelogram. Correct? And same way PQSR. Correct? P quadrilateral PQSR is a parallelogram. मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको अलाउड नहीं है. क्लियर? एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट नहीं चलता. ओके. Now take triangle ABE and triangle उसका भी हाफ ले लेते हैं PQS. ओके. Now उन्होंने क्या बोला कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल था, AC अपॉन PR के. लेकिन ABEC पैरेललोग्राम है. करेक्ट. Same way, PQSR is a parallelogram. Means what? AC and BE equal होंगे. कैसे? Opposite side of parallelogram. So in place of AC, I can write BE. In place of PR, I can write QS. Correct? Okay. एंड क्या गिवन था, एंड गिवन था AD अपॉन PM, ये AB अपॉन PQ के इक्वल था. ओके. तो आई कैन मल्टीप्लाई टू बोथ साइड. करेक्ट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आई कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो डबल ऑफ AD इज नथिंग बट AE एंड डबल ऑफ PM इज नथिंग बट PS. करेक्ट. ओके. अब देखिए ABE एंड PQS में AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS एंड AE अपॉन PS. करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आ गए. करेक्ट. AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS एंड AE अपॉन PS. तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है मीन्स ट्राइंगल ABE is similar to triangle PQS. Correct? Okay. If they are similar, means corresponding angle are equal. So I can write this angle is equals to this angle. Means angle BAE is equals to angle QPS. Correct? ये हो गया SSS test. And this is by corresponding angle of similar triangle. Correct? Okay, great. Similarly, अगर आप, I'll just write here, थोड़ा सा ही चाहिए. Triangle ACE and triangle PRS. ACE and PRS को similar proof कर सकते हैं same method से. This upon this is given. This upon this is given. So in place of AB, you can write CE, and in place of PQ, you can write this and double of this. तो दोनों similar हो गए, मतलब corresponding angle equal होंगे. ACAE is equals to angle RPS. This equals to this. Correct? So in case this is my first equation and this is my second equation. करेक्ट. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए BAE, here BAE, this CAE. जब दोनों को ऐड कर देंगे तो I'll get what, एंगल A. करेक्ट. जब आप 1 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल A. राइट हैंड साइड QPS एंड RPS, मतलब एंगल P मिलेगा.
अब देखिए, अब हमें क्या प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? ओके, ये वाला ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर. So this side upon this side is equals to this upon this. This is given question में. अभी हमने प्रूव किया एंगल A is equals to एंगल P. तो दो ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, एंड बीच का करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है. मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट में. स्पेस नहीं था तो मैंने समझाने की कोशिश की. अगर नहीं समझा तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए कि मुझे दोबारा नीटली लिखना चाहिए. ठीक है? इफ यू अंडरस्टूड वेल एंड गुड. ठीक है, डन. चलिए 15th क्वेश्चन कर लेते हैं. रब कर दें. ओके, क्वेश्चन 15 देखिए क्या बोल रहा है. वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. ये एक पोल है जिसकी 6 मीटर हाइट है. दिस इज 4 मीटर का शैडो वो बना रहा है, पोल एंड शैडो. ओके, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर. ओके, टावर है तो थोड़ा बड़ा होगा, हाइट तो नहीं पता, लेकिन इसकी शेडो 28 मीटर है. एम आई राइट? या हमें ये हाइट ढूंढनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, सो देखिए सेम टाइम पे बात करें तो एक्चुअली वो क्या बोल रहा है कि सन रेज जो आएंगी वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगी, आइदर फॉर द पोल और फॉर द टावर. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, जब हम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे हम सीखेंगे. तो ये सन का, अगर यहां सन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल सेम होगा. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा. ठीक है? ओके, तो इनके नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर. एक सेकेंड. ओके, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में लिखिए. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा वाई 90 डिग्री. दोनों स्टैंडिंग खड़े होंगे ना, स्टैंडिंग मतलब 90 डिग्री. ठीक है? सो दे आर स्टैंडिंग. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन. सो एंगल से दोनों सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए. सो इफ आई एम टेकिंग ए बी फ्रॉम हियर, इसका पी क्यू लेना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड. इफ आई एम टेकिंग बी सी, यू हैव टू टेक आर क्यू. वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है. ए बी एच, पी क्यू इज 6, BC 28 and this is 4. 7 4s are 28. So cross multiply करके 42 meter is the height of the tower. Clear? ये done? चलिए क्वेश्चन 16, the last question of this exercise, वो कर लेते हैं. So if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR. Okay, फिर से मीडियन आ गया. and PQR. ABC का मीडियन क्या है? ABC का मीडियन है AD, मतलब अपोजिट साइड मिड पॉइंट, और इसका है PM. Okay. Respectively, where triangle
ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, एक और दिया है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है। वो मीडियन है, ये इंफॉर्मेशन के साथ दिस इज मीडियन AD एंड PM एंड अलोंग विद दैट दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ओके, सो पहले ट्रायंगल देख लेते हैं, किस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। AB दिस ट्रायंगल मतलब दिस साइड, PQ ओके, AD मतलब दिस वन, PM मतलब दिस वन, मतलब हमें छोटे ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखते हैं। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाँ, तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के लिए हमें वो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जहां पे ये साइड से एग्जिस्ट करती है, मतलब ABD एंड ट्रायंगल PQM, करेक्ट। ओके, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गई, दिस इज 16। ओके, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्रायंगल। एंड ये भी पता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो अगर ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देती हूं, तो लेट्स डिवाइड इट बाय 2 बिकॉज आई नीड जस्ट हाफ ऑफ इट। सो यहां से आ गया AB PQ, BC का हाफ BD, QBD लिया। वैसे बहुत बार बता चुकी हूं, फिर भी बता देती हूं। हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो ये दोनों इक्वल तो हैं, बट आई विल कंसीडर दिस वन, करेक्ट, बिकॉज दैट इज इन द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एंड हियर इट इज QM। नाउ दो साइड का रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस और इंक्लूडेड एंगल, अगर इक्वल है मतलब ट्रायंगल आर सिमिलर। सो दीज टू आर सिमिलर, आई राइट हियर triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS test. Clear? So this way हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थ्योरम के साथ 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय।